तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन, मतलब कि नशे की आदत। ड्रग एडिक्शन इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to introduce the chapter briefly, that what is drug addiction. So drug addiction is a worldwide problem. It is causing the death of countless people. People are aware of the dangerous effects of drug addiction. In spite of it, they are falling prey to it rapidly. It is very tragic to see the youth of today taking drugs. Drug addiction affects us physically as well as mentally, leaving us unable to lead a normal life. Our total dependence on drugs makes it almost impossible for us to shake off our drug addiction. Drug addiction is caused both by genetic and environmental factors. When a person has genetic abnormalities and is dissatisfied with his life due to troubled domestic background and bad social conditions, he resorts to drugs. Rehabilitation center plays the most important role in controlling drug addiction. In these centers, drug addicts are strictly supervised. They are given complete medical support and guidance to shake off this habit. However, it is observed that families are reluctant to their drug victims to rehabilitation center for fear the drug addicts is rehabilitated of being insulted by their relatives and friends. They should seek an expert's counsel even after the drug addict is rehabilitated. They should try their best to help such patients shake off their habit permanently and become useful citizens. So, we come to the conclusion that drug addiction is harmful for society and its individual in many ways. It is a big threat to society. We must take steps to remove this evil. So students, this was the brief introduction about this chapter, drug addiction. Now we move on to the translation. First of all, first paragraph. Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Long-term use of drug causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. मंशियात की लत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। मंशियात की लत की बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उस पर मुकम्मल इन्हिसार है। मंशियात का तवील मियादी इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। जितना ज़्यादा ख़तरनाक मादा इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही पुरख़तरनाक ये बन जाता है। स्टूडेंट, देयर इज़ अ मुकम्मल इस्तेमाल नशे की मुकम्मल तौर पर मोहताजी का सबब बनता है। मंशियात की कुछ इकसाम जो जहनी और जिस्मानी परेशानी का बायस बनती हैं, वो हेरोइन, भंग, तंबाकू, वेलियम, कोकेन और शराब हैं। स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, आर द ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजरस ऑफ ड्रग्स? क्या नशे के आदी लोग नशे के खतरात से आगाह हैं? So the answer is yes. Drug addicts are aware of the danger of drugs. In spite of it, they take drugs just to seek an escape from their responsibilities. बिल्कुल, ड्रग के जो नशे के आदी लोग होते हैं वो उसके ख़तरे से आगाह होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो
नशे को इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए। Now we move on to the difficult words, pronunciations, meaning and synonyms related to the paragraph number 1. First one is addiction. This one is pronunciation. Addiction का मतलब होता है आदत और synonym habit. Dangerous खतरनाक, high risk. Permanent मुस्तकिल constant. Valium नशा, muscle relaxing drug. Marijuana भंग, इसको हम हशीश भी कह सकते हैं. Alcohol शराब, liquor. Sickness बीमारी means illness. So students, there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 1. First one is addiction. He is now fighting his addiction to alcohol. Dangerous, it is very dangerous to cross this street. Permanent, he was in a state of a permanent depression. बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैंने उनमें से कुछ के सेंटेंसेस जो हैं वो बना दिए हैं, बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है। और यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स और सिनोनिम्स को याद रखना है और इनके स्पेलिंग्स को भी याद करना है आपने। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 2. Drug addiction is caused by the environmental factors. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic backgrounds. माहौलियाती अवामिल मंशियात की आदत का सबब बनते हैं। चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की लत का या आदत का बाइस बनते हैं वो हम उम्रों की बुरी सोहबत का असर और तकलीफ दे घरेलू पस मंज़र होते हैं। When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. जब नौजवान बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वह नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से बेचैन और गैर मुतमईन होते हैं वो भी नशे की आदत की तरफ रुजू कर सकते हैं ताकि ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से बचा जा सके। सो स्टूडेंट, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन। कौन से माहौलियाती अनासिर हैं जो कि ड्रग एडिक्शन का बाइस बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। सो द आंसर इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन आर बैड पेयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। हाँ जी, बुरी सोहबत, अपनी उम्र के लोगों के साथ जो बुरी सोहबत है वो, और घरेलू जो परेशानियां हैं जो उनके बैकग्राउंड की, उसकी वजह से जो है लोग नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। नाउ देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग एंड सिनोनिम्स रिलेटेड टू द पैराग्राफ नंबर 2. फर्स्ट वन इज़ पेयर. पेयर मीन्स साथी, फेलो. इन्फ्लुएंस असर, इम्पैक्ट. ट्रबल्ड तकलीफ दे, बोदर्ड. escape बचाओ, get away. prey शिकार हो जाना, killed by. domestic घरेलू, home या local दोनों इसके synonyms में आएंगे। there are some sentences related to the difficult words. peer, she was rejected by her peer group. influence, he can influence opinion at highest level. troubled, I am good friend with a very troubled man. जी बेटा, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो बना दिए गए हैं, बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं आपने उनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनके मीनिंग्स को याद करना है, प्रोनाउंसिएशन याद करनी है और इनके स्पेलिंग्स को भी अच्छे तरीके से याद करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 3. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज़ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. इस सिलसिले में इंतहाई अहम तदबीर जो कि की जा सकती है वो नशे के आदी की शख्स की बहाली और सेहतयाबी है। बहुत से ममालिक में जिनमें पाकिस्तान शामिल है, नशे के आदी उनके ख़ानदान और दोस्त इस बात को रिवाज के ख़िलाफ़ समझते हैं कि वो अपने मसाइल के बारे में दूसरों से बात करें. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This is not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. इस बात के खारिज अजबरदारी
बरादरी करार दिए जाने के खौफ से इसके बारे में बात करने में वो घबराहट महसूस करते हैं। ये बात ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देती है बल्कि ज़्यादातर मामलात में नशे के आदी अफराद जो हैं उनके बर वक्त इलाज, मुआवजे और पेशा वराना मुशावरत की कमी की वजह से मर जाते हैं। So students, there are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonyms related to the paragraph number 3. First one is regard. Regard का मतलब होता है लिहाज या अदब, कंसीडर भी हो सकता है इसका सिनोनिम। रिहेबिलिटेशन बहाली के मराकज़, रिस्टोरिंग समवन, एडिक्ट्स नशई अफराद, यूज़र और एब्यूज़र, डिक्लेयर ऐलान करना, अनाउंस कर देना, एम्बेरस परेशान करना, ह्यूमिलिएट करना, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि किसी की शर्म आना, ठीक है। काउंसलिंग मुशावरत, गाइडेंस। There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 3. First one is regard. I regard him as an enemy. Rehabilitation, he booked himself into a rehabilitation clinic. Addicts, he was a drug addict. बेटा यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनमें से कुछ मैंने बना दिए सेंटेंसेस, बाकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है घर पे एज अ होमवर्क। और बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इन सब के सिनोनिम्स, मीनिंग्स और स्पेलिंग्स को आपने याद करना है टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 4. Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in this center. ठीक है, बहाली के मराकज़ इंसदाद और सेहतयाबी के अमल के लिए बेहतरीन जगह हैं। ये मराकज़ उनकी निगरानी करते हैं इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई फराहम की जाती है। Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation center where proper treatment and cure available for them. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of this center. लिहाजा नशे के आदी अफराद को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली के मराकज़ में ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुनासिब इलाज मुहैया हो। बहरहाल इस बात का इन्हिसार नशे की आदत के मसले की जल्द शनाख्त और मुतासरीन के उन मराकज़ की टीम के साथ मुकम्मल ताउन पर है। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द क्योर ऑफ ड्रग विक्टिम्स। हाँ जी, so the answer is complete medical support and guidance is provided to drug victims at rehabilitation center. मुकम्मल तिब्बी इमदाद जो है वो वहाँ पर मुहैया की जाती है और उनके साथ साथ उनको मतलब कि गाइडेंस भी दी जाती है नशे के आदी अफराद को। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonyms related to the paragraph number 4. First one is strictly. Strictly का मतलब होता है बेटा सख्ती से, rigidly. Guidance रहनुमाई करना, advice. Cure इलाज, heal. Rapid मीन तेज़, quick. Victims मुतासरीन, सफ़र, ठीक है, सफ़र करने वाला या उस जगह से गुज़रने वाला या उस माहौल से गुज़रने वाला, किसी परेशानी से गुज़रने वाला। Cooperation ताउन, team work. There are some difficult words and sentences related to the paragraph number 4. First one is strictly. Details are kept strictly secret. Guidance. There is no guidance in the conception. Cure. Prevention is better than cure. बेटा यहाँ पर कुछ difficult words के मैंने sentences आपकी आसानी के लिए बना दिए हैं ताकि आप उनको देखें और उनको अच्छे तरीके से याद करें। बाकी जितने भी difficult words हैं उनके sentences की practice आपने खुद से घर में करनी है ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं या वोकैबुलरी है वो इन्हांस हो सके, बढ़ सके। और यहाँ पर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स आपने याद करने हैं, उनके स्पेलिंग्स भी अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 5. The other factors that contribute to the rehabilitation of the drug victim are proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. ठीक है, दूसरा अंसर जो नशे के शिकार के बहाली में मदद करता है वो मुनासिब मुशावरत है, यानी कि जितनी ज़्यादा गाइडेंस होगी, जितनी ज़्यादा काउंसलिंग होगी, उतने ज़्यादा बेहतर तौर पर वो हल हो जाएगा मसला। जितनी जल्दी ये कर ली जाए उतना ही नशे के शिकार के लिए बेहतर होता है। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of relapse. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel to the victim for better motivation and adjustment.
दोबारा बिगाड़ के ख़तरे की बिना पर नशा करने वाले को मामूल की ज़िंदगी बहाली के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को नशे के शिकार शख्स की तनकीदी तर्ज पर निगरानी जारी रखनी होगी, यानी कि नज़र रखनी चाहिए उसके ऊपर, और बेहतर तरगीब और जज्बाती मुताबकत के लिए पेशा वराना मुशावरत देते रहना चाहिए, यानी उसको वक्तन फ़वक्तन उस बारे में आगाह रखना चाहिए कि ये नशा जो है आपके लिए नुकसानदेह है, या उसको उस बारे में रहनुमाई देनी चाहिए ताकि वो दोबारा से नशे की तरफ ना लौट जाए। स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग जो लफ्ज़ है उससे आपका क्या मुराद लेते हैं, आप क्या मतलब लेते हैं। The term counseling means professional advice about a problem. It is very necessary for the rehabilitation of drug addicts. इसका मतलब है किसी को मशवरा देना, किसी को प्रोफेशनल एडवाइस दे देना ताकि वो उस चीज़ से बच सके, जो बुरी चीज़ है उसके लिए नशा है, उसके बारे में किसी को प्रोफेशनली एडवाइस दे देना कि वो उसके लिए कितनी नुकसानदेह है। इस तरीके से ये लफ्ज़ काउंसलिंग यूज़ होते हैं। So there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 5. First one is contribution. Contribution की ये pronunciation है, meaning है इसका हिस्सा डालना, और इसका synonym है donation. Replace, replace का मतलब होता है जगह देना, restore. Motivation mean तहरीक, inspiration. Adjustment मुवाफ़क़त, adaptation. Abuser नशाबाज शख्स या यूज़र. Watch निगरानी करना, view, ठीक है। Now there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 5. First one is contribution. Thanks for your contribution in charity. Replace, she cannot be easily replaced. Motivation, Ali is an intelligent boy but he lacks motivation. ठीक है, बड़े यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए आपको। बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपने घर पे करनी है सेंटेंसेस बनाने की, और उनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर 6. Drug addiction is really a very serious threat to any society. In Pakistan, there are almost 5 million drug addicts. Addicts undergo numerical, economical, social and health problem. नशे की आदत वाकई किसी भी माशरे के लिए एक शदीद ख़तरा है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशे के आदी अफराद हैं। नशेई लोगों को माशरी, माशरती और सेहत के मुतालिक बहुत से मसाइल झेलना पड़ते हैं। The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still make efforts to are needed, more efforts needed to complete wipe it out. This can only be made possible by the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should work firmly to live a healthy and meaningful life. पूरी दुनिया की हुकूमतें माशरे से नशे की लत या आदत का ख़ात्मा करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए और भी मज़ीद काविशों की ज़रूरत है। इस बात को तब ही मुमकिन बनाया जा सकता है कि अगर लोग उनके ख़तरात से बखूबी वाकिफ़ हो जाए या उनमें अवेयरनेस ज़्यादा फैल जाए। जो मंशियात पैदा करती हैं उन्हें एक सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का पक्का वादा करना चाहिए, ठीक है। Now students, there are some difficult words, pronunciation, meanings and synonyms related to the paragraph number 6. First one is social. Social का मतलब होता है बेटा माशी, communal या economical. अच्छा, eliminate ख़त्म कर देना, remove कर देना. Efforts कोशिशें, attempts. Firmly मजबूती से, securely. Threats धमकियाँ, warning. Aware बाखबर होना, well informed. Now there are some difficult words and sentences related to the paragraph number 6. Social, the ant is a social insect. Eliminate, the body naturally eliminates waste. Efforts, I appreciate your efforts to help me. बेटा यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैंने सेंटेंसेस बना दिए, बाकी जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे, ये आपका होमवर्क है। और जहाँ पर जितने भी सिनोनिम्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको आपने याद करना है टू इंक्रीज़ योर वोकेबलरी, टू इन्हेंस योर राइटिंग स्किल्स, बिकॉज राइटिंग स्किल्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। जब भी आप कोई ऐसे वगैरह लिखना चाहें या कोई भी बात लिखना चाहें, अपनी बात को बयान करना चाहें, तो जब तक आपको ग्रामर, वोकेबलरी, बैंक ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे आपके पास, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अपनी बात को बयान करना, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप सेंटेंसेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें ताकि आपकी जो सेंटेंस मेकिंग पावर है वो अच्छी हो सके, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
आई होप आपको चैप्टर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।